Hello everyone, you all know that CBSE has added a lot of new topics into the syllabus of class 12 political science, right? So from that one topic I'm going to discuss today, that is about Arab Spring. Okay, so myself Manjula, let's start. Now see, whatever you see right now, that is known as domino effect. Basically उसमें क्या था, एक पहले फोर्स एक ब्रिक के ऊपर अप्लाई किया था एंड दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली लेड टू चेन रिएक्शन और सारे ही ब्रिक्स क्या हुआ, वो नीचे गिरते चले गए. सो आवर टॉपिक इज समवेयर और द अदर इट इज बेस्ड ऑन दिस डोमिनो इफेक्ट, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सी हियर दिस फायर, ओके. एक मैच स्टिक में स्टार्ट हुआ था एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर मैच स्टिक. तो यहाँ पर ये फायर स्प्रेड हुआ, राइट. सेम वे अरब वर्ल्ड में यहाँ पर जो एक जगह पे जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, दैट एक्चुअली जम्प्ड एंड स्प्रेड टू अदर प्लेसेस. ओके, so here our topic that is about Arab Spring. Arab means basically that location in the world, that is the Arab world, okay, where the population of Arabic language people are large. It consists of nearly 22 countries in the world. I will show you in the map, right? And spring means what? Spring means basically more suddenly, jump suddenly, okay. So यहाँ पर jump क्या suddenly हुआ? That is the protest that started from one place that actually slowly and gradually spread to different places around the Arab world, right? So let's start. Now here you have the map of Arab world where this Arab Spring started and spread throughout this particular location. It consists of total 22 countries, right? This Arab world consists of 22 countries. ठीक है, यहाँ पर ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट और स्प्रेड हुआ था. और यहाँ पर देखना, दिस प्लेस इज नोन एज वेस्ट एशिया और यू कैन से मिडल ईस्ट, ठीक है. एंड दिस प्लेस इज नॉर्थ अफ्रीका. ओके, just see the location of this particular place, like note down the place of Tunisia especially. This is that starting point where the protest actually started and just spread to other places like Libya, Egypt, okay, and to all other places, Morocco, Sudan, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, all the places. It just spreaded from this Tunisia country, right? Just see the location. Now let's first understand the meaning of Arab Spring, right? Arab Spring, basically it was a series of anti-government protest, uprising. Uprising means kind of an act of resistance, revolt against the government, okay? An armed rebellion, okay? That is, conflict was taking place with the help of firearms, weapons and all against the government. And this protest, anti-government protest, was actually not just took place in one particular place. It just started in one place and just slowly and gradually spread throughout this Arab world, that is in this particular location, right? If we analyze the intensity of protest in this particular location, in some places minor protest took place and in some other places major protest, and of course in some places civil war, and in many other places it has been witnessed that the old government was overthrown because of this particular protest, right? So let's continue. Now see, ये जो अरब स्प्रिंग है, this is something very very important. It shaped the world geopolitics, especially in this Arab world, okay. So in this 21st century कब से start होता है? That is 1st January 2001 से we call that this period is 21st century, right? So इस 21st century में ये एक ऐसा एक अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट था, which actually changed the world, especially the Arab world. So यहाँ इस 21st century में यहाँ पर क्या हुआ था, that people here actually started the protest against the government for democracies, for democratization in the Western Asia. तो ये 21st century में एक ऐसा चीज़ वर्ल्ड को दिखा कि a new kind of development was taking place in that particular place. A new kind of protest was taking place against this authoritarian government, and people were actually demanding democracy. They wanted that the system should be democratized. Okay, so this was prevalent strongly in the Arab world, that is especially the Western Asia and the North Africa. Western Asia, I already showed you that this place is Western Asia, or you call it Middle East. Then this one, North Africa. So this 21st century actually witnessed a very strong movement for democracy in this particular location, right?
It actually started around 2009, but it was strongly prevalent during 2010 and 2011 time period. Strongly, but it went on in 2012 as well, and later on also a kind of a movement took place, and even recently in Egypt also in 2018 that Arab Spring kind of protest took place, right? Now let's understand why this movement started and what were the reasons responsible for the start of this particular Arab Spring. Now see, I already mentioned in the previous slide that the movement first started in this small country in Northern Africa, that is Tunisia, and slowly and gradually it just spread to other places like the domino effect, right? And what were the reasons responsible for that? First one, the country was suffering from a lot of corruption. If you want any of your work done by the government officer or in any other place, you have to bribe someone, right? Then people don't have any job. There is a lot of unemployment in the country. Then people were, a lot of people were in the category of below poverty line. So these were, reasons that were actually pulled the citizens to fight against Tunisian government. एक ऐसा होता है ना कि लाइक आप ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स में सफ़र कर रहे हो, लाइक यू आर लिविंग इन टूनेशिया, करप्शंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पावर्टी भी बहुत ज़्यादा, गरीबी बहुत है. तो ये ऑलरेडी आप प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सिस्टम के अगेंस्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, राइट? और उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ हो जाती है दैट एक्चुअली स्पार्क्स द मूवमेंट. एक चिंगारी लग जाती है ना, उसके वजह से मूवमेंट बहुत स्ट्रांगली स्प्रेड हो जाता है. एंड दैट स्पार्क वॉज दिस वन, सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बौजीजी, राइट? ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके वजह से जो इन सारे रीजंस भी जो कारण भी लोगों के मन में जो पॉइंट्स थे, और इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. ओके, अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो प्रोटेस्ट हुआ था दैट टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप. टूनिशिया में ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप था, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ दैट दे वांटेड द पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी चेंज. ओके, करप्शन शुड बी रिमूव्ड एंड पीपल वांटेड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी को सोसाइटी से रिमूव करने. इन सारे रीजन से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टार्ट हो गया. और जो मूवमेंट टूनेशिया में स्टार्ट हुआ था, इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन टूनेशिया, अदर अरब वर्ल्ड के लोगों ने भी सेम ऐसा मूवमेंट अपने पर्टिकुलर कंट्री में करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भी ये जो कॉजेज़ जो है दैट इज़ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ऑटोक्रेटिक रूल, वहाँ पर भी स्ट्रांगली प्रिवेलेंट थे, राइट? अब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं दैट सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बौजीजी क्या है. अगर इसको समझ जाओगे तो बेटर होगा, बहुत ही बेटर, ईजी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे. नाउ सी, मोहम्मद बौजीजी जो थे वो बेसिकली एक स्मॉल पुअर फैमिली को बिलोंग करते, एक स्ट्रीट वेंडर थे टूनेशिया में, राइट? जैसे एवरी डे टू डे जो उनका रूटीन होता है, तो वो अपना कार्ट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह रख के वो सेल करने वो वहाँ पर लोकेलिटी में गए थे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ ऑफिशियल्स ने उन्हें रोक दिया था दैट यू आर नॉट अलाउड टू सेल योर वेजिटेबल्स ओवर हियर, और उन्होंने उनके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कार्ट में था उसको कन्फिस्केट कर दिया, राइट? अब सिंस बहुत पुअर था ये, तो उसके पास तो ऐसा कोई लाइसेंस अरेंजमेंट इसने किया नहीं था, लाइसेंस था नहीं, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइसेंस उन्होंने वो सारे फ्रूट जो कार्ट में जो था उसको कन्फिस्केट कर दिया था, और थोड़ा सा काइंड ऑफ एक आर्ग्यूमेंट हुए थे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ. देन फिर पुलिस को बुलाया था, तो पुलिस में एक वुमेन पुलिस जो आई थी वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, शी जस्ट स्लैप्ड हिम, ओके, पब्लिक प्लेस में इस तरह जो स्लैप कर दिया था, एंड स्टार्टेड फीलिंग ह्यूमिलिएटेड. he felt insulted with that situation, और ऑलरेडी जो सिस्टम में करप्शंस हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट या पावर्टी भी था, तो ऑलरेडी एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, राइट? सो और उसके साथ इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया, वहाँ पर स्लैप कर दिया था. ये सारा इंसिडेंट हुआ था अराउंड दिस 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 2000, इस मिनट में राइट हियर, 17 दिसंबर 2010 को हुआ था ये इंसिडेंट, ओके, अराउंड 10:30 हुआ था मॉर्निंग में. उस जब जैसे ये इंसिडेंट हुआ था, बाय विद इन जस्ट 1 hour, बाय अराउंड 11:30 वेंट बिफोर दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दैट ऑफिस, जहाँ पर किसके कार्ड को कन्फिस्केट कर दिया था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जस्ट you पुट दैट लिक्विड
flammable liquid on his body and just set himself on fire. अपने ऊपर उन्होंने आग लगा ली थी and just collapsed on that particular place itself. That actually sparked the movement. वहाँ से start हुआ Tunisian revolution, which is also known as Jasmine revolution. Jasmine revolution इसलिए because jasmine flower is the state flower, you can say the national flower of Tunisia. Okay, so you can see here किस तरीके से self immolation उन्होंने किया था and that actually sparked the movement. सी ऑलरेडी लोग सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे, करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था दिस एक्चुअली स्पार्क दैट मूवमेंट. और एक मूवमेंट जो था टूनेशिया में बहुत ही स्ट्रांगली स्टार्ट हुआ. स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट जो था वो टूनेशिया में ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट ऑलरेडी थी उसको रिमूव कर दिया था और एक डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश हुआ. राइट, सीइंग द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन टूनेशिया, ऑल द अदर कंट्रीज इन द अरब वर्ल्ड, यहाँ जो भी अरब कंट्रीज जो आसपास के जो कंट्रीज जो थे, जैसे टूनेशिया में अगर यहाँ पे ये इस तरीके से एक चेंज, एक रिफॉर्म हुआ, राइट, वो एक डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन सिस्टम से एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, तो जो और भी नियर बाई कंट्रीज में जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो थे, यहाँ पर भी लोग जो थे दे गॉट इंस्पायर्ड थ्रू दिस टूनेशियन जैस्मिन रेवोल्यूशन एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड सच काइंड ऑफ प्रोटेस्ट in their particular place. और इसीलिए हम कहते हैं अरब स्प्रिंग. राइट, सो यू कैन सी द मूवमेंट स्प्रेड स्लोली एंड ग्रेजुअली, और इनसे इंस्पिरेशन के वजह से बाकी रीजन्स में भी स्टार्ट हुए थे. ठीक है, एंड इट स्लोली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज अराउंड द अरब वर्ल्ड. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो अरब वर्ल्ड में जो इस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे उसके इम्पैक्ट क्या थे. नाउ सी ऑलरेडी मैंशन दैट कि टूनेशिया में एक तरीके से गवर्नमेंट जो था दैट वाज द ओल्ड गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन एंड न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज एस्टैब्लिश ओवर दियर. सो ये जो अरब और इस तरीके से इजिप्ट में भी चेंजेस आए थे, लीबिया में भी चेंजेस आए थे. राइट, सो दिस इज समथिंग मार्क्ड एज दी समथिंग अ बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द मिडल ईस्ट, दैट इज द वेस्ट एशिया, सिंस डीकोलोनाइजेशन. पहले ये जो भी कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट के अफ्रीका के कंट्रीज़ थे वो भी जैसे इंडिया किसी और कंट्री के कॉलोनीज़ थे, तो यहाँ पर वो भी ये कंट्रीज से कहीं ना कहीं किसी और कंट्री से कॉलोनीज़ थे. तो ओके, डीकोलोनाइज जब से वो दूसरे कंट्रीज से कॉलोनी से इंडिपेंडेंट हुए थे, राइट, उसके बाद का एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन था इस अरब स्प्रिंग के थ्रू. ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टूनेशिया और इजिप्ट का स्पेशली हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल टूनेशिया में जो वहाँ का प्रेसिडेंट जो था दैट इज जैन अल अबिदिनी बेन अली. ओके, बहुत ही बड़ा नेम है, जस्ट रिमेंबर बाय बेन अली. ओके, ही लेफ्ट दैट कंट्री व्हेन दिस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाज टेकिंग प्लेस. ओके, एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, एक न्यू गवर्नमेंट को सेटअप किया था. एंड दिस पर्सन, दिस प्रेसिडेंट, ऑटोक्रेटिक प्रेसिडेंट हु रूल्ड इन टूनेशिया, he ruled in Tunisia from 1989 to 2011. You can see strong, large number of time he ruled in this particular place. बहुत ज़्यादा, this is something what the change the people of that particular region they wanted. Now, Egypt की अगर हम बात करें तो इजिप्ट में Hosni Mubarak, he was in power since 1979. See, in some places it is written 1981, but the material which has been prescribed by the CBS in that website, it is mentioned 1979. So you remember both the dates, okay, that will be beneficial, but exact one is 1981. Okay, so Hosni Mubarak, he was thrown out when the movement spread in that particular country. वहाँ से Hosni Mubarak को पावर से रिमूव कर दिया था, कोलैप्स हो गया उसका पर्टिकुलर सिस्टम, और वहाँ पर एक काइंड ऑफ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया फॉर दी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के लिए. राइट, देन अगर सेम काइंड ऑफ मूवमेंट जो था वो अदर कंट्रीज में और भी स्प्रेड हुआ, फॉर एग्जाम्पल यमन, बहरीन, लिबिया, सीरिया. ओके, सो सिमिलर सारे जो मूवमेंट जो होते हैं जो टूनेशिया में स्टार्ट हुआ था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सारे रीजन्स में स्प्रेड हो गया. एंड ऑल द प्लेसेस द मेन एम वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सेटअप इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो एक तरीके से डेमोक्रेटिक अवेकनिंग स्टार्टेड थ्रू आउट दिस रीजन. Okay, so this is something very, very important change that the world witnessed in this 21st century. So this is all about Arab Spring. I hope this one clear. Thank you for watching.